Hello everyone, welcome back to your own channel Science K Fun Day. Today we are going to start sample paper of biology term 2 discussion. So before we start, like and share the video. So let us begin. Instructions you all know. 3 sections are there, 13 questions are there, 2 mark 6 questions, 3 mark 6 questions and 1 question of 5 marks. Case based. No internal choice is there. Next slide पे चले. सेक्शन सी से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज केस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छा आता है. फर्स्ट केस बेस्ड है ये. During a lecture, teacher mentioned the importance of the restriction enzymes and stated the biotech industry would certainly not have flourished as it has without these enzymes. Teacher further describe of the type of restriction enzymes and all. How does the exonuclease activity differ from endonuclease? It's very easy. This is the sequence. GATTCC लेट बी जो भी है ठीक है. इफ़ देयर इज एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मीन्स बाहर, मीन्स ये बाहर से कट कर सकता है. पर अगर मैं बात करूं एंडो की, इफ़ इट इज़ एंडो मीन्स इट विल कट फ्रॉम द सेंटर्स और इट बीच में से मीन्स फ्रॉम द मिड पार्ट, और यू कैन से इट कट एट द स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द DNA. Next is, as per the naming rule, expand hint 3. H stand for Haemophilus. I is influenzae. ठीक है. इन आई हो गया, एच हो गया, आई एन हो गया, डी. डी मीन्स डी स्ट्रेन, जो उसको स्ट्रेन होगा उसकी फैमिली में से डी होगा. 3 का मतलब है इन 2 है, जो 3 है 2 है 2 है मीन्स ये 2 टाइप 2 का है तो 2 ऐसे लिख देगा. 2 सेकेंड है अपनी फैमिली में से निकालने वाला. हिंट 1 हिंट 2 सेकेंड नंबर पे डिस्कवर हुआ. क्लियर. थर्ड इज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कंटेन द बेस पेयर्स which read same on both strands. From 5 to 3 and 3 to 5 it reads the same. For example, you have heard this word madam, MADAM, and from this side also MADAM, and the sequence is like GATTCC. sequence will be CCTTAG. from here or here, wherever you read it is same. So this is palindromic sequence. Third is, what happen when once a restriction enzyme find its recognition sequence? If the restriction enzyme has find its recognition sequence, for example, a person find its suitable match, so they will tie a knot or they will bind with each other. Similarly, if the restriction enzyme has found its suitable recognition sequence, it will bind to the DNA. If it will bind, then there will be a cut in both strands, and they will, how, let me make you understand. GATTC, hydrogen bonds are there. Let it be CCTTAG. This is one sequence. Another one GCCGA, ऐसे ले लो तो यह जगह AGCCGC. Now from CC here, so it will get, this portion will get cut and bind here. CCGA, ठीक है, ये जुड़ जाएगा GA के साथ. ऐसे ही नीचे वाला सीक्वेंस भी कैंसिल हो जाएगा. मीन्स आपस में बाइंड कर जाएंगे. NCERT में बहुत अच्छी फिगर गिवन है ब्लैक एंड वाइट में, आप उसको रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट,
डबल हेलिक्स बॉन्ड बन जाएगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। हिंट 3 की रिकॉग्निशन साइट क्या है? आग, आग कटक, आग कट करना है। हिंट 3 की एक और वन किया गटैक, ग टैक, TTC, ग टटक, आग टटक। देखो AAG इसको उल्टा पढ़ लो, हिंट 3 की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फास्ट DNA molecules can carry a foreign DNA segment and replicate inside the host. The cell is called vector. Plasmid and bacteriophage used as the cloning vector. This is because plasmid and bacteriophage have the ability to replicate within the bacterial cells independent of the chromosomal DNA. Bacteriophage have a very high number of their genome within the bacterial cells, but in case of plasmid, some may have only 1 or only 2 copies per cell, whereas other have 15 to 100 copies cell. ये डायग्राम जो NCERT कहना है इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ये पेपर में आना ही आना है, श्योर है, ठीक है। व्हाट इज़ PBr32? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ROP, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन? बताओ। PBr32 क्या होता है? ये एक ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है। सो PBr32 इज ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर। अब होता क्या है? प्लाज्मिड है तो वही ऑटोनोमस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड, स्मॉल, ये सारे फीचर्स को भी लिख दोगे आप। देन सिग्निफिकेंस ऑफ ROP जो प्रोटीन रेप्लिकेशन चाहिए ना प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन के लिए, उसके लिए कोड करता है। सो ROP इन PBr32 encode for the protein involved in the replication of plasmid. Ampicillin resistance means ampicillin and tetracycline, these two are the selectable marker. These differentiate between recombinants and non-recombinants easily. What is ORA? PBR in PBr322 indicates. Okay, ORI is O, origin, or R, replication. So it is the origin of the replication. It sequence from where replication starts and any piece of DNA. So when linked to the sequence can be made to replicate, means it is a starting point where the replication will begin with any piece of the DNA and it will replicate. PBR means P stands for plasmid and P stands for plasmid, and BR is in capitals, means it is the name of the scientist, that is Bolivar and Rodriguez. Bolivar and Rodriguez. Bolivar and Rodriguez. Clear? So the scientists constructed the plasmid. Next question, how is the copy number of plasmid vector related to the yield of recombinant protein? Recombinant DNA, RDNA, recombinant DNA मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर सकता है, क्योंकि उसका कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा है और कॉपी नंबर ही रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की यील्ड को डिस्क्राइब करता है और डिटरमाइन करता है। जितना ज़्यादा कॉपी नंबर उतनी ज़्यादा यील्ड होने वाली है। सो यू कैन से मोर इज़ द कॉपी नंबर, मोर इज़ द यील्ड ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. So we have done the case question. It was easy. Now we will go back. Okay, start. The image is of the antibody. Which type of cell produce antibody? B cells, B lymphocytes. B cells लिख देती हूँ. Answer is the B lymphocytes. Two difference between antibody and interferon. Easy. Antibody को A भी लिख देते हैं और इंटरफेरॉन ये रहे. मैं आपको बेसिक मीनिंग इनका समझा देती हूँ. देखो, एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि सिंथेसाइज होता है किसी एंटीजन के
रिस्पॉन्स में, होस्ट में किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में, ठीक है। और ये वो प्रोटीन है जो कि वायरल इन्फेक्शन में होता है, किसी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट सिंथेसाइज होता है। एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जो कि किसी होस्ट के अंदर एंटीजन के रिस्पॉन्स में होता है, अगेंस्ट द एंटीजन, अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। सेकेंड इज द रिस्पॉन्स इज स्लो, द रिस्पॉन्स इज क्विक, okay. Now these are produced by B cells, B lymphocytes to combat the foreign material. These are produced by virus itself. These are passed on to the and circulate in the blood and lymph, move and in blood and lymph to dispose the antigen, and interferon leave the infected cell and enter the new healthy cell to dispose of the microbes. You can write any two because 3 mark question 1 and 2. Okay, so let's go to back to another question. 11th, hope it's visible. Okay, image is showing the proinsulin. State the role of C peptide. First question, number of polypeptides found in human insulin. C peptide is an extra stretch of the polypeptide which make the insulin molecule inactive. So there are only 2 polypeptides, that is A and B. The C one is an immature, or you can say proinsulin, and after maturation it is removed. And in A, this is A and this is B. There is a linkage disulfide bond with the disulfide bonds. Next question is, why has Indian Parliament cleared the second amendment of the country's patent bill? Because if there will be no rule about the patent bill, people can start biopiracy. So these amendments are necessary because amendments to the patent bills will empower the people, empower the India to prevent the unauthorized exploitation of our resources. Means biopiracy will be prevented and traditional knowledge by other countries will not be shared. So this bill will initiate the research development, will encompass invention skills in ourselves. Sorry, next we have this question also, 10th. The Amazonian forest is referred to as lungs of the planet. Mention any human activity which caused the loss of biodiversity. Human activities have caused a loss of biodiversity in Amazonian rainforest. I always remind of Amazon. So, because the lungs of planet, because they share the 20% of oxygen in the atmosphere is only from the Amazon rainforest, and the human being is cutting it. Many plants they have cut it from in the Amazon rainforest for the cultivation of soya bean, and also to convert the grasslands for raising their cattle. Second is species area curve graph is drawn. ये लो बन गया species area graph. How is it that when a large area is considered, large area, which area? Large area, large area, स्लोप चीपर हो जाता है स्मॉल एरिया के लिए, है ये क्या? बड़ा एरिया है तो स्लोप चीपर है अगर बात, ठीक है, कंपेरेटिवली इस, क्योंकि अगर एरिया होगा लार्ज, एरिया क्या होने वाला है? लार्ज, फूड ज़्यादा अवेलेबल चाहिए है ना, कंपटीशन होगा, अगर ज़्यादा अवेलेबिलिटी है तो लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाएंगे, तो ग्राफ थोड़ा स्टीपर होना शुरू हो जाएगा, स्टीपर सीधा ही ग्रोथ बढ़ेगी अनलिमिटेड सोर्सेज केस में, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन। अच्छा, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और अगर लो प्रोडक्टिविटी बायोडाइवर्सिटी है, लो बायोडाइवर्सिटी है, मैनमेड इकोसिस्टम, एक मिनट, कैन यू थिंक ऑफ वेरी लो बायोडाइवर्सिटी
मैन मेड इकोसिस्टम दैट हैज़ हाई प्रोडक्टिविटी। वीट फील्ड की बात कर सकते हैं या पैडी फील्ड की, जो कि मैन मेड इकोसिस्टम में ग्रो कर रहा है। उनकी प्रोडक्टिविटी चाहे हाई है बट डाइवर्सिटी कम है, क्योंकि हम एक ही तरह के चावल चूवल खाते रहते हैं। क्लियर? जो इमेज कहते हैं शो की है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्कर फिश, ये शार्क है, ये मान लो आपकी शार्क है। और ये है हमारी सक्कर फिश। सॉरी फॉर द ड्राइंग। ठीक है, अभी जो सक्कर फिश है ये इसके शार्क के बॉटम में फंस गई है अपने सक्कर्स की मदद से। फिर इसने क्या किया, चलो नहीं जा पा रही तो फिर क्या हुआ, कोरोना में ऐसे लोगों का होता है ना, बाहर फॉरेन से आगे, अब नहीं जा पा रही तो क्या करें, वहीं पे खाओ पियो ऐश करो। तो इसने इससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया। पर शार्क को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना फ़ायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। तो ऐसी एसोसिएशन जिसमें एक को फ़ायदा पर दूसरे को कुछ भी ना हो, न्यूट्रल है दूसरा, उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। सॉरी, ठीक है, इन विच association two living individuals are there and of the different species, out of which one is benefited and other is neither harmed neither benefited. It tells that community service department of your school have a visit to slum area to educate the slum dwellers with the health and hygiene. Why there is need to organize and write the steps you will use during the interaction. Slum area means no public facilities, no education, no sanitation, no health, no hygiene, right? No living standard. So we need to organize the visits to make them educated about the sanitation and the health facilities and the education facilities. Sanitation, health and education facility. Now, if we will organize the visits, there will be a bidirectional process, means slum area people will also develop, as well as we will get the cooperation of authorities, as well as we will deal with concerned authorities. Interacting with the people will help us to know about their problems, know about the funds they need or their needs. Clear? Next, section B, last question. 7th question is, how can you construct an artificial recombinant DNA molecule? You will take a foreign DNA, you will take a plasmid. Let it, the plasmid is this. I have made so rude. Antibiotic, resistance gene of foreign DNA, plasmid. We will take its part taken and introduce it in this part. So what will become is दिस फॉर्म्स। ठीक है, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो क्या बना, ये बना, ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो आप ये प्लाज्मिड कौन सा है, ये प्लाज्मिड है, साल्मोनेला टाइफीरियम का ले लो चाहे। ठीक है, हमने इसको लिंक कर दिया। लिंक कैसे हुआ होगा, यहाँ पे जुड़ा कैसे, ये विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस, लिजेस नहीं बोलते, ठीक है, इसको लाइगेस बोलते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह काम किया, इस पीस ऑफ डीएनए को अटैच करवा दिया, और ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बना ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्योंकि इनविट्रोली बना है। पर अगर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अगर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं ई कोलाई के अंदर डाल दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप से इसको रेप्लिकेट करवा देगा और मल्टीपल कॉपीज़ बनवा देगा विद हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो एबिलिटी कि जिससे बहुत सारी कॉपीज़ बनती हैं, मल्टीप्लाई होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए
बन जाता है। बायोप्रेसी के बारे में पूछा है कि आपको एग्जाम्पल्स पता है कि ये क्लेम्स ट्रू है कि नहीं है, एग्जाम्पल्स सब बताओ। देखो, इन फॉरेन कंपनी के पास इंडिया राइस की और इंडिया की टर्मरिक नीम की 22 पेटेंट प्लांट्स हैं उनके पास, जो कि है इंडिया में बने थे, इंडियन ओरिजिन के हैं, लाइक बासमती राइस, टर्मरिक, नीम। ठीक है, तो उन्होंने चोरी किया। चोरी को क्या बोलते हैं? सोर्सेज की चोरी को बायोप्रेसी बोलते हैं। तो बायोप्रेसी है कि यूज़ करना बायो सोर्सेज को एमएनसीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। अगर अथॉराइजेशन प्रॉपर आपकी परमिशन के बिना और आपको बिना पेमेंट, कंपनसेटरी पेमेंट बिना दिए हुए ये ऐसा कुछ काम यूज़ करती हैं तो उसको बोलते हैं बायोप्रेसी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डेवलपिंग नेशंस, मीन्स उनके पास तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती ही होती है। ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मीन्स ज़्यादा रिसोर्सेज बन सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज मीन्स वो डेवलप हो सकता है। और जो ऑलरेडी डेवलप्ड उनके पास बायोडाइवर्सिटी कम है, रिसोर्सेज कम है, तो वो बायोप्रेसी करने की चोरी करते हैं। बायोप्रेसी करते हैं मीन्स चोरी करते हैं बायो रिसोर्सेज की, ताकि वो फाइनेंशियली तो रिच ही है, बायोडाइवर्सिटी पर पुअर है, तो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए वो बायोप्रेसी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, यीस्ट की जो फर्मेंटेशन है बेसिस है बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री का। एग्जाम्पल बताओ, स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो। बेकर्स, बेकिंग के दौरान क्या होता है? हमारी बेकर्स यीस्ट दैट मीन्स सैकेरोमाइसस सर्विसिएई मोलाजेस के ऊपर ग्रो होती है, उसको फर्मेंट करती है शुगर को, और डो प्रोड्यूस होता है और CO2 गैस पास आउट होती है। ठीक है, तो जो ब्रेड और बेक प्रोडक्ट्स सॉरी ब्रेक हाँ सॉरी तो जो ब्रेड और बेक प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पोर्स आ जाते हैं और वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने से क्या होता है? ठीक है, ब्रेड और बेक आपके देखते होगा आपने, सॉफ्ट होते हैं बन्स वगैरह, सो ड्यू टू द लार्ज पोर्स एंड CO2 रिलीज। और अगर ब्रूइंग इंडस्ट्री की बात करूँ, उसमें भी सैक्रोमाइसिस सर्विसी या सैक्रोमाइसिस सेक SAKE यूज़ हो जाती है। ठीक है, और ब्रूइंग इंडस्ट्री में जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है, अल्कोहलिक बीवरेजेस बनते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है या अल्कोहल कंटेंट है, डिपेंड करता है कौन सा फर्मेंटिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हो। क्लियर? माइक्रोब्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है र्यूमिनेंट्स के अंदर, जैसे लैक्टिक एसिड आपका डिसीज़ कॉजिंग में यूज़ होता है। ठीक है, र्यूमिनेंट्स के अंदर, र्यूमिनेंट्स को प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, मतलब सेलुलोज ज़्यादा लेते हैं, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना ईजी नहीं है, खली वाला काम है। ठीक है, बिकॉज वो इनडाइजेस्टिबल मैटर है मैमल्स के अंदर, तो उसमें से न्यूट्रिशन लेना, क्योंकि सेलुलोस है ना, ये क्या लिख दिया, ये जो सेलुलोस होता है ये लो क्वालिटी का फूड है, मीन्स लो न्यूट्रिशन फूड है। इसमें से फूड न्यूट्रिशन निकालना बड़ा मुश्किल है, मीन्स। पर जो र्यूमिनेंट्स है उनका जो एवोल्यूशन हुआ है इस प्रकार से हुआ है कि जो उनका जो बॉडी है लो क्वालिटी फूड से भी न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, तो होता क्या है, स्टमक में र्यूमिनेंट्स के सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये सेलुलेस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेल वॉल टूट जाती है। देखो ये क्या करेगा, माइक्रोब्स जो है ये सेलुलेस एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। सेलुलेस एंजाइम फिर सेलुलोज की जो प्लांट वॉल्स है उसको तोड़ देगा, तो इससे फैटी एसिड रिलीज़ हो जाएगा और बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट, सॉरी, ड्यू टू पीयर प्रेशर एडोलेसेंट्स ने ओपियोइड्स लेना शुरू कर दिया इंट्रावेनसली। क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम्स उनको फ्यूचर में फेस करनी पड़ेंगी? उनको अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे उनको स्टीलिंग करनी पड़ सकती है, और क्योंकि ये इंट्रावेनसली ले रहे हैं तो इन्फेक्टेड नीडल है, तो एड्स और हेपेटाइटिस B का डर है। रेस्पिरेटरी हार्ट प्रॉब्लम्स, सेरिब्रल हीमोरेज और एक्सेसिव ड्रग लेगा तो डेथ और कॉमा। मेंशन द नेम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटलीस्ट 3 गैसेस फाउंड इन बायोगैस। मीथेन,
carbon dioxide, hydrogen. Can you assign the correct chronological order to above given steps? We need to see the diagram. Okay. ये रहा फर्स्ट पार्ट तो हमने कर भी लिया. ठीक है. बायोगैस के बारे में बताइए. प्लांट हमें पूरा करना है. अच्छा, इसकी अनारोबिक डाइजेशन करवा रहे हैं. अनएरोबिक उसने बता दिया. तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वही होगा एनारोबिक ब्रेकडाउन. एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा जो भी आपके पास प्रेजेंट है. तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल हेयर ब्रेक डाउन. तो ठीक है, अब डाइजेशन हो रही है तो कुछ ना कुछ यूज़ होगा एंजाइम. तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज़ यूज्ड एंड मोनोमर इज synthesized. That monomer will digest its storage and output as a fertilizer. Rest substrate will be converted into the organic acid, and organic acid on organic acid methanobacterium will act and release the methane gas. Okay, and that will be acting as the fuel gas for heat and cooking. Next is the species area graph is given. We need to write the equation and explain it. The equation is S equals to C A raised to power Z. Species richness, Y intercept, A is the area and Z is the regression coefficient. Alexander explained this, that as the species richness will increase and the area increases. Okay, the area as the area increases, species richness will increase, but up to a limit. And this relation, if I go to find the relation for the wider taxa like angiosperms, birds and fishes, it is the rectangular hyperbola. And if I talk about the log scale, it is straight line, as you can see, steep. Next, we have just 3 questions left now. Why do some birds plant receive weaker illumination than the exposed floating plant in the lake? Clear? ठीक है, जाओ. Let me make the diagram. ये है वाटर बॉडी, ये पानी. अब मैं 2 पौधे उगाने वाली हूँ. एक पौधा ये है, इसकी रूट्स ये रही, ये पौधा है. एक ये पौधा है जो पानी में है, पानी के अंदर है काफ़ी. आप बताओ ज़्यादा लाइट किसको मिलेगी? लाइट ज़्यादा किसको मिलने वाली है? इसको कि इसको? सनलाइट, सन ये रहा, ऑब्वियसली इसको, क्योंकि ये बाहर फ्लोट कर रहा है, एक्सपोज्ड है. ठीक है, इसको लाइट ज़्यादा मिलेगी. वेयर एज जो फ्लोट एक्सप्लोज्ड ही नहीं हुआ, जो सब मौजूद है पानी, जो सनलाइट से एक्सपोज ही नहीं हो रहा, तो उसके पास तो कम पहुंचेगी. क्योंकि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट का, उसमें सारे कलर पानी के डेप्थ में नहीं जाते हैं. डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ सिर्फ जाता है. जब हम पानी देखते हैं हमें अंदर से ब्लू दिखता है, बिकॉज ब्लू कलर पेनिट्रेट कर रहा है. हमें पानी लाल क्यों नहीं दिखता, ग्रीन क्यों नहीं दिखता, येलो क्यों नहीं दिखता? बिकॉज उनकी वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ता है. स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स पेनिट्रेट नहीं करते हैं डेप्थ्स में. ठीक है, ये आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं. फर्स्ट में पॉलिनेशन हो रही है, ये कैटलॉगेट्स फॉर एग्जांपल है. और ये बी वाला है जो ये है स्कवेंजर्स की एग्जांपल है. ठीक है, तो बोल रहा है म्यूचुअलिज्म बताओ किस में हो रही है? पॉलिनेशन में म्यूचुअलिज्म ही तो है. फ्लावर यहाँ से जो पॉलिनेटर आता है, इंसेक्ट आता है, यहाँ से नेक्टर भी ले जाता है और इसके पॉलिनेट भी कर देता है, तो दोनों का काम बन गया. ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ए आंसर. और बताओ बी में क्या हो रहा है? बी में स्कवेंजिंग हो रही है. ठीक है, इंसेक्ट स्कवेंजर का काम कर रहा है. लास्ट प्लाज्मोडियम है जो आपका ट्रॉपिक्स में ही क्यों रहता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बेसिकली ये मलेरिया ट्रॉपिक्स में रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? क्योंकि जो मलेरिया होता है ये एनोफिलिस मॉस्किटो फैलाती है और इसको ग्रो करने के लिए, इस पैरासाइट को ग्रो करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, वार्म टेम्परेचर चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. तो ट्रॉपिक्स में मिल जाता है ये वार्म टेम्परेचर, स्टैग्नेंट वाटर मिल जाता है, जिससे ही ग्रो ईजिली कर सकता है. तो मलेरिया ट्रॉपिक्स में इसलिए ग्रो करता है बिकॉज ऑफ इट सुटेबल कंडीशंस फाउंड देयर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल सैम्पल पेपर.
So if you like the video, if and the explanation I have given, like my channel, share and